दिख रहा है देखो तो इज इट विजिबल फॉर यू? Yes, sir. Okay. Everyone can see? कोई एक बोल तो इसका ddx क्या है? कोई एक बोलो। 1/x sir. 1/x गुड। देखो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में पहले बोलूंगा, ठीक है? सो लॉग क्या है थोड़ा बोल लेता हूँ फर्स्ट। लॉग मालूम है ना लॉग क्या है? एनीवन? व्हाट इज लॉग? एक्सपोनेंट तो मालूम है। एक्सपोनेंट मालूम है ना? लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। Yes sir. देखो अगर a x n these are all real number and a to the power x equal to अगर n होता है then इसको लॉगरिथमिक टूल्स में ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू पावर इक्वल टू log n whose base is a. You should remember n is here greater than 0. The domain, log का जो domain होता है this n, or you can write a to the power n equal to x, not an issue. A to the power n equal to x, then n equal to power equal to log x whose base is a. So here x should be greater than 0. The domain should be means log, देखो log 0 is undefined and log less than 0 is also undefined. तो log का वैल्यू होता है मोर देन 0 से शुरू होता है. So this is the exponent form, this is the logarithmic form. अगर मान लो तुमने ऐसे लिखा 2 to the power 4 equal to 16, तो तुरंत इसको logarithmic form में अगर लिखना चाहते हो तो लिख पाओगे 4 equal to power equal to log 16 जिसका बेस क्या होगा 2. Am I clear? Understood? Yes, sir. Yes. Yes sir. So फिर देखो logarithmic फॉर्म से तुम एक्सपोनेंट फॉर्म में भी ले सकते हो उल्टा. बेस टू द पावर ये 2 to the power 4 इक्वल टू log 16 मींस 16. अगर मान लो तुमको ये दिया है 4 इक्वल टू log base x 16, so they can ask you what is the value of x, what is the value of x, तब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो x to the power 4 is equal to what 16. That means you can write x to the power 4 2 to the power 4. So the value of x equal to what? The value of x equal to like 2. Understood? Understood? Yes sir. Yes. So these are actually some concept which are there in SEBA board in class 9 onwards in advanced maths. Okay, this part is missing in CBSE board. So this is called actually when exponent form, this is logarithmic form. So there are some properties of log. ये मैं बोलता हूँ एक अभी properties of log. देखो first of all log 1 is 0. कुछ भी बेस लिखो, कोई भी बेस लिखो, log 1 is हमेशा 0. Then log suppose m into n.
base is a, so when it is product, so it will be log m plus log n. इंडाइसेस में जैसे पावर अगर मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस लिखते हैं ना, 2 to the power m into 2 to the power n. You can write 2 to the power m plus n. Same thing here when log m into n, so it will be log m plus log n. Then log m by n divide base is a, so you can write log m minus log n. When it is divide, then it will be minus. Understood? Sir, okay. लिखो लिखो. These are all important properties. Then log, suppose ये m to the power n है base है, तो ये पावर नीचे आ जाएगा n into log m base है. अगर log base and ये same है, so value is always 1. You can prove it very easily. You can prove it. See, जैसे इसका नाम अगर हम लोग x देंगे, हाँ देखो, let इसका नाम दे तो x इक्वल टू log a, तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो तुरंत, a to the power x इक्वल टू a. सो मतलब a to the power x, a to the power 1. So what is x? X will be what? 1, isn't it? So that's why log a base a, the value is always 1. जब ये दोनों सेम होगा, the value is always 1. Understood? Yes, sir. Very good. अगर अभी और एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो लॉग डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए, अभी लिख लो a to the power log base a x, it will be x only. a to the power log x whose base is also a, ये दोनों अगर सेम होगा तो वैल्यू इज x. You can prove it very easily. Then इसको y नाम देके फिर both side log ले लो, वही आंसर आ जाएगा. So proof is not required here. ये चीज याद रखना, a और log का बेस ये दोनों सेम रहना होगा. अगर मान लो मेरे यहाँ पे e है, तो इसका भी बेस, log का भी बेस e अगर होगा, तो x equal to what? You can write it is x only. So it will be very important property. And another one property, log का बेस कैसे चेंज करता है, देखो मान लो ये है log x y, बेस इज x और ये y, तो यहाँ पे सपोज मुझे e चाहिए, यू कैन राइट log y बेस e log x बेस e, मतलब log y by log x both are basis e now. So this is called base change. तुमको जो भी बेस बनाना है, सपोज ये है log ax, सपोज तुमको ये ddx करने दिया है, so this ddx you cannot write 1 by x. Understood? Can you write ddx of log x is 1 by x here? Yes, sir. You can't write, no. ddx of log x 1 by x, base क्या होना होगा? E. E. Base should be e, not a. Base should be what? This is called E. ln. जब उसका बेस e होता है ln, so ddx of log x base e, then it is 1 by x. अगर मान लो ये दिया, तुमको ddx of ये फाइंड करने दिया log base ax, then what you have to do? See, you have to change the base, then you can write, ये property यूज होगा तो log
a base x. So this is log x by, you write log a, both bases e. Am I clear? Yes, sir. This is the very important property of log, how to change the base. तुमको जो base चाहिए वो base डाल सकते हो. So देखो अभी ये जो कल मैंने u इंटू वी बोला था, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी, इसका फॉर्मूला क्या था याद है ना? प्रोडक्ट रूल. Yes, sir. u dx of v U plus dx v plus v ddx by u. नाउ देखो अगर यहाँ पे एक टर्म कांस्टेंट है, c इंटू सपोज u, वेयर c इज कांस्टेंट, तो सिर्फ एक ही पार्ट लिखने से हो जाएगा शॉर्टकट. अब हम लोग क्या करेंगे, देखो c बाहर कर दिया, डी डी एक्स ऑफ u लगा दिया. अगर तुम इसको u इंटू वी मानते हो, देखो नाउ u बाहर डी डी एक्स ऑफ c, लेकिन दिस पार्ट विल बी जीरो. यस और नॉट? Yes, sir. Because ddx of constant 0, so simply ddx of constant bar ddx of u. मतलब कभी अगर तुमको ऐसे मिलता है ddx of 5x, 5 into x, this 5 is constant, इसको आउट कर दो, then ddx of x. Am I clear? Yes, sir. So this is the shortcut way. So बहुत जगह पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे बाद में, मतलब u into v का ही ये फॉर्म है. So जैसे देखो अभी अभी जो मैंने दिया था, अगर इसको तुमको ddx करना है, ddx of log base ax. So first of all you have to change this base. मतलब ये क्या होगा, ddx of log x by log a base e. Am I clear? Yes, sir. So this is none other than, you can write ddx of this one 1 by log base ea into log ex. This is fully constant. See, ea, all things are constant. So this 1 by this part will be come out from the ddx. Then it will be simply ddx of what? Log base ex. Then it will be 1 by x. So 1 by log ae into that part is what? 1 by x. Understood? Yes, sir. Now the another one thing, अगर log का कभी ये बेस तुमको ऐसे करना पड़े, देखो log यहाँ पे e, यहाँ पे x है, अगर इसको यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे लाना है, तो that is 1 by, this is the another one property, उसमें ही लिख के रखो. If base और ये the value of domain अगर उसको चेंज करना पड़े, इंटरचेंज, तो प्रॉपर्टी हो जाता है 1 by log x now base e. So that is the another one property, huh? Yes, sir. So these are some properties of log. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ddx ऑफ कभी कभी log x बेस e को छोड़ के कुछ भी दे सकता है, b 5 10, तब तुमको उसको e में कन्वर्ट करना है ऐसे. इज दैट ओके? Yes, sir. समझ में आया सबको? देन देखो उस दिन मैंने जो फॉर्मूला दिया था, सब तुम लोग आई होप याद कर लिया होगा. अगर नहीं किया फिर भी याद करना जल्दी से. हाँ देखो उसमें से और कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूला हिसाब से हम लोग ऐड करेंगे, डिराइव करके दिखाता हूँ. जैसे ddx ऑफ अगर रूट x होता है, ये एज ए फॉर्मूला हिसाब से तुमको लर्न करना होगा, बट मैं अभी तुम लोगों को डिराइव करके दिखाता हूँ. सो ddx ऑफ रूट x मींस x टू द पावर हाफ. यस. Yes, sir. So what is ddx of x to the power n? N x to the power n minus 1. Yes. Yes, sir.
माइनस हाफ, हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ को अगर प्लस करोगे तो 1 by x to the power half, so that is simply 1 by 2 और x to the power half means root x, तो मतलब ddx of root x is 1 by 2 root x. You write this one as a formula. समझ में आया सबको? Yes, sir. और एक चीज देखो, उसको भी फॉर्मूला हिसाब से ही याद रखेंगे, ddx ऑफ 1 by x, तो 1 by x का कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन ये x to the power n हो जाएगा वेरी इजीली. इसको ऐसे लिख सकते हो, ddx ऑफ 1 by x means x to the power minus 1 I can write. Yes. Yes, sir. So this is again x to the power n. So n x to the power n minus 1. So minus 1 x to the power minus 2 minus 1 1 by x square, or you can say minus 1 by x square. So this is minus 1 by x square, ddx of 1 by x. Is that okay? Yes, sir. अभी देखो, सो एकदम वेरी बिगिनिंग तुम लोग सीखना होगा डिफरेंशिएशन चेन रूल, डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल. डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन रूल. सो यहाँ से फुल्ली कैलकुलस स्टार्ट हो गया, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से. तो बहुत मार्क यहीं पे है बोर्ड में तुम लोगों का. इवन इससे तुम्हारा एंट्रेंस में भी बहुत मार्क आता है. देखो, सपोज बोला है कि एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर 4x square plus 3x plus 2 with respect to x. मतलब इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब इसको ddx कहना है. ठीक है, तुमको यहाँ पे फाइंड करने दिया ddx ऑफ दिस. इसका नाम भी दे सकते हो तुम y दोगे तो dy dx फाइंड करना होगा, ddx ऑफ ये फाइंड करना है. तो अभी देखो, ऐसा फॉर्मूला कुछ नहीं है हम लोगों को, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ddx ऑफ रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. तो तब क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, देखो द चेन रूल. दिस हम लोग को ये तो फॉर्मूला मिला है ddx ऑफ रूट x मिला है ना. Yes, sir. सो दिस होल थिंग इनसाइड दिस पूरा थिंग को तुमको लेट करना होगा x. यू हैव टू एज्यूम इट इज x. सो इट बिकम्स ddx of root x. ऐसा हो गया. So what is ddx of root x? 1 by 2 root x. Yes. Yes, sir. But जिसको तुम एज्यूम करोगे तुरंत अगेन ddx of assuming part, जो पार्ट को तुमने एज्यूम किया था उसी को बोलते हैं चेन रूल. जब इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड किया, ये पूरा चीज को हम लोग x लेट किया था, ddx of root x, so 1 by 2 root x, but this part is not x, that's why into ddx of that supposing part. This is called chain rule. 2 root 4x square plus 3x plus 2. अभी इसको ddx करो, देखो अंदर ddx of 4x square, 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. What is ddx of x square? nx to nx to the power n minus 1, that is x square. अभी डायरेक्ट बोलो, twice x. x. ठीक है, अभी तुमको अंदर से ही लर्न करना होगा उसको, बार बार मतलब फॉर्मूला नहीं लिख सकते. देखो एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे, सारा
वो फंडामेंटल यूज होगा, प्लस है ना। अगर इतना स्टेप लिखने जाओगे क्लास 12 का स्टूडेंट होके तो काम नहीं होगा, क्योंकि इसका बेसिक तुम लोगों को क्लास 11 में ही मिला है। एक्चुअली ये होता है ना यहाँ पे अभी, isn't it? सर सो सेकंड लाइन में बोथ क्यों इनटू हुआ? ये पार्ट हाँ सर। देखो, यही तो है चेन रूल। देखो ये पार्ट एक्स नहीं है, दिस पार्ट इज नॉट एक्स, इज इट एक्स? नो सर। नो, इसको हम लोग एक्स माना, ddx ऑफ रूट एक्स। तो ddx ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। सो जिसको तुम एज्यूम करोगे दैट पार्ट विल बी अगेन ddx, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। अंडरस्टूड? यस सर। That is called Okay. chain rule. So ddx of this assuming part is 4x square plus 3x plus 2. You write that one. 4x square plus 3x. जिसको भी assume करोगे इसको लॉन्ग प्रोसेस में कर सकते हैं हम लोग, ये फंक्शन लेट करके एक डिफरेंट फंक्शन। बट ऐसे याद करने से अच्छा है तुम लोग ये प्रोसेस तो याद रखना, जिसको भी तुम लोग एज्यूम करोगे तुरंत मल्टीप्लाई बाय ddx ऑफ दैट एज्यूमिंग पार्ट। तो ये पार्ट को मैंने x सपोज किया था, इसीलिए उसके साथ अगेन ddx ऑफ दैट पार्ट, जिसको एज्यूम करते हो। तो इसको अगर dd, हाँ बोलो। तो सर उसका जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट था। नहीं, सर स्क्वायर रूट को तो मैंने एज्यूम नहीं किया। ओके सर, ओके सर। देखो ये इनबिल्ट फॉर्मूला ddx ऑफ रूट x, मैंने पूरा चीज को x माना है क्या? नो सर। नो, ओनली दिस। हाँ, इसका देखो, अगर फंक्शन यहाँ पे डालते हो, इसको फंक्शन मानते हो, ये रूट fx हुआ, ये फंक्शन है ना तुम्हारा? यस सर। उस fx को मैंने x माना, इसीलिए ddx ऑफ अगेन दैट fx। पूरा इंक्लूडिंग रूट नहीं लोगे, इंक्लूडिंग रूट लोगे तो अगेन यहाँ पे तो वही चीज आ जाएगा, वो तो तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर ही रहे हो ना। अंडरस्टूड नाउ? यस सर। So this including root is not x, only inside wala function is my function x, this part. So that's why again ddx of that fx. तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो अगेन ये ऐसा हो जाता है ना। हाँ सर। बट अभी एक बार दिखा देता हूँ, लेकिन तुम लोग उसको बार बार नहीं लिखोगे ऐसे। तो ये हो गया 2 रूट 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो u इंटू वी, 4 कांस्टेंट बाहर कर दो, देन ddx ऑफ x स्क्वायर, डायरेक्ट लिखो 2x। अंडरस्टूड? यस सर। 3 कांस्टेंट बाहर लेके आओ, देन ddx ऑफ x 1 प्लस ddx ऑफ कांस्टेंट 2 0। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ऊपर होगा 8x प्लस 3 ऊपर 8x plus 3 divided by 2 into root over 4x square plus 3x plus 2. Is that okay? Yes sir. Very good. अभी जब तक ये चलता रहेगा तब तक तुम लोग घर में क्या रिकॉल करते रहोगे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो मैंने फॉर्मूलाज दिया, ठीक है? Yes sir. एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो फॉर्मूलाज दिया था, शायद मैंने दिया था ना एक तुम लोगों को? हाँ सर, एक दिया था। हाँ, एक वो एक सॉफ्ट कॉपी भी दिया था शायद। हाँ सर, एक कॉपी दिया था वही। हाँ, उसमें तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो भी है सारा याद कर लेना अभी से, क्योंकि अभी तक जो चीज करेंगे सब में इनवर्स चाहिए एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का भी फॉर्मूला चाहिए। देखो अभी देखो, कभी कभी 2 बार 3 बार भी चेंज हो जाएगा। देखो सिंपल और एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही आंसर होगा? हाँ, खत्म हो गया। इज अ वेरी फर्स्ट बिगिनिंग पार्ट ऑफ डिराइवेटिव। ओके, देखो जैसे तुम लोग क्लास 11 में जो डिराइवेटिव मिला एकदम इजी पार्ट था, उसमें भी चेन रूल था, 2 एक क्वेश्चन था। जैसे देखो क्लास 11 में
ये एक क्वेश्चन था ddx ऑफ x टू द पावर nx, याद है? हाँ सर, मिसलेनियस में था, मिसलेनियस में था। हाँ हाँ सर, देखो इसको, ये भी तुम लोग चेन रूल से ही किया, वो चेन रूल मालूम था कि नहीं तब मालूम नहीं है। देखो साइन एक्स टू दी पावर इसको n ऐसे लिखते हैं, बिकॉज अगर साइन क्यूब एक्स या साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग साइन एक्स होल स्क्वायर लिखते हैं ना। यस सर, सो देखो साइन टू दी पावर nx का कोई ddx नहीं है, ddx ऑफ साइन एक्स है, ddx ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, cos x, isn't cos it? x, सो yes sir, यहाँ पे देखो ये n तो हम लोग बाहर लिख सकते हैं, साइन एक्स टू दी पावर n, तब मैं ये पूरा साइन एक्स को मैं x लेट कर सकता हूँ, ddx ऑफ x टू दी पावर n हो जाएगा, होगा yes कि sir, नहीं? दिस पार्ट इज x, x टू दी पावर बाहर देख रहे हो n, सो ddx ऑफ x टू दी, ये चीज तो याद रखना, ये चीज तो रियल कांस्टेंट होना होगा। अगर मान लो कभी तुमको ऐसे मिलते ddx ऑफ x टू दी पावर x, ये क्वेश्चन यहीं पे मिलेगा थोड़ा देर बाद, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो x टू दी पावर x माइनस 1, बिकॉज ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है x ddx ऑफ x टू दी पावर n, दैट n शुड बी रियल कांस्टेंट, ओके? n शुड बी व्हाट, हाँ सर, रियल real कांस्टेंट। constant, हाँ, अगर वो कभी वेरिएबल होता है तो तुम लोग वो फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे, क्या करना होगा वो इसमें ही मिलेगा। देखो ddx ऑफ sin x टू द पावर n, दिस n इज कांस्टेंट, तो इस sin x को x मानो, सो ddx ऑफ x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस 1, यस। yes sir, बट यहाँ पे x, ये फंक्शन तो x नहीं है, sin x, इसको हम लोग एज्यूम किया sin x, तो अगेन ddx ऑफ कौन सा पार्ट होगा बोलो तो, ddx of sin x, sin x, क्योंकि इसको हम लोग एज्यूम किया था x, ddx of sin x, तो यू कैन राइट n sin x to the power n minus 1 into ddx of sin x is cos x, or you can write n into cos x, or you can write sin to the power n minus 1x। ये क्लास 11 में था, याद है? हाँ सर, याद है, सो क्लास 11 में भी तुम लोग चेन रूल किया था, सो दिस पार्ट वाज वेरी बेसिक पार्ट। नाउ यही से क्लास 12 में स्टार्ट हुआ, जहाँ पे तुम लोग खत्म करके आया क्लास 11 में, ठीक है? हाँ सर, देखो, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं कुछ फंक्शन देता हूं, देखो साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स, नंबर 1, नंबर 2 सेक 10 रूट एक्स, सेक 10 रूट एक्स। ये दो क्वेश्चन पहले दिखा लेता हूं, देखो एक सेकंड, फॉर्मूला लर्न हुआ ना तुम लोग का? हाँ सर, कर रहा था, फॉर्मूला जल्दी से लर्न कर लेना, हाँ? क्योंकि ये सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा अभी, जितना शाम करोगे यहाँ से। तो पहला वाला देखो, तुमको करना है ddx ऑफ साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस है इंडिविजुअली लिख सकते हो, ddx ऑफ साइन रूट एक्स प्लस ddx ऑफ कॉस स्क्वायर रूट एक्स। एम आई क्लियर? yes sir, नाउ देखो, दिस इज ddx ऑफ साइन, ये पूरा को x मानना होगा, तभी जाके तुमको फॉर्मूला मिलेगा ddx ऑफ साइन x का, है ना? हाँ सर, तो रूट एक्स होल चीज इज x, the root x whole thing is x, so ddx of sin x cos x means root x, but that root x is not x, that's why again ddx of
इस बार रूट आएगा, रूट क्यों आएगा बोलो तो? सर रूट को ही पूरा को माना है। पूरा, वेरी गुड, पूरा रूट एक्स, होल थिंग इज एक्स, इसीलिए अगेन ddx ऑफ रूट एक्स। अब इस cos स्क्वायर है, देखो पहले तुम स्क्वायर को बाहर लेके जाओ, पहले ये पूरा चीज तो एक्स मानेंगे, देन एक्स टू द पावर 2 हो जाएगा। सो ये हो गया cos रूट एक्स, ddx ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला, नो सपोज नथिंग, isn't it? सर प्लस ये देखो, ये cos रूट एक्स, पूरा चीज cos रूट एक्स पूरा इज एक्स, एक्स स्क्वायर, ddx of x square is what? Twice x, है ना? यस सर। x to the power n minus 1, 2 minus 1 1 ही होगा, तो इसके लिए इसके ऊपर मैंने पावर 1 नहीं लिखा हुआ। सो ddx of x square twice x, ये पूरा पार्ट x है, इसलिए ddx of ये पूरा चीज ब्रैकेट के अंदर cos रूट x। Am I clear? यस सर। वेरी गुड। सो अभी देखो ये हो गया तुम्हारा cos रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स प्लस 2 cos रूट एक्स। ना यहाँ पे देखो तो कौन सा अगेन सपोजिंग पार्ट होगा ddx ऑफ cos रूट एक्स में? सर रूट एक्स। रूट एक्स, यस, ddx ऑफ रूट एक्स को अगर x मानेंगे तो cos x हो जाएगा, ddx ऑफ cos x माइनस sin x। एम आई क्लियर? यस सर। लेकिन ये रूट एक्स को अगेन मैंने एज्यूम किया x बोल के, है ना? हाँ सर। अगेन ddx ऑफ उसके साथ रहेगा, रूट एक्स को एज्यूम किया था, दैट्स व्हाई रूट एक्स। इज दैट ओके? यस सर। माइनस प्लस माइनस 2 रूट, सॉरी, साइन रूट एक्स into cos root x, and ddx of root x is what? 1/2 रूट एक्स। 1/2 root x. Understood? सारा ddx हो गया, यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हो, cos रूट x twice रूट x माइनस साइन रूट x cos रूट x डिवाइडेड बाय रूट x। ये रूट x काटना मत है, ये एंगल में है, एलसीएम ले सकते हो या तो यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है? अंडरस्टूड? ओके सर। मतलब उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज है ये। नेक्स्ट वाला देखो, नंबर 2 था sec, ये फाइंड करने दिया, ddx ऑफ sec 10 रूट x। किसको सपोज करना होगा कोई बोलो तो? which part should be the supposing part? Sir, 10x, तो 10x। 10 root x. 10 root x, very good. 10 root x should be, whole part should be x. So then ddx of sec x. What is ddx of sec x? Formula में देखो, Sec ddx of 10x. sec x 10x, very good. ddx of sec x होता है sec x, x मतलब जो है वही लिखो 10x। Is that okay? ओके सर। देन ये पार्ट को तुमने x माना, अगेन ddx ऑफ 10 रूट x, क्योंकि 10 रूट x होल चीज मेरा x था, sec 10 रूट x 10 ऑफ 10 रूट x, ddx ऑफ 10 रूट x को अभी x मानो। व्हाट इज ddx ऑफ 10x? फॉर्मूला देखो, ddx ऑफ, हाँ, सर सेकंड x। sec स्क्वायर x, x मींस रूट x, बट ये x नहीं है, रूट x को x माना गया, इसलिए अगेन ddx ऑफ रूट x।
Is that okay? Yes, sir. Sec of 10 root x, 10 of 10 root x, then into sec square root x, और वो होगा 1/2 root x, dx of root x. तो वो रूट एक्स तुम लोग 2 रूट एक्स नीचे लिख सकते हो, बाकी सारा इंटू है sec 10 root x, 10 root x and then sec square root x. यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का कुछ भी नहीं है. तो दो एग्जाम दिखाता हूँ जहाँ पे तुमको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी यूज करना होगा कुछ. आया समझ में सबको? हाँ सर आया. वेरी गुड. देखो सपोज ये दिया है, देखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. नंबर 1 साइन ax plus by cos cx plus d. Number 2 cos x cube into sin square x to the power 5. देखो नंबर 1 dx ऑफ फाइंड करना है sin ax plus by cos cx plus d. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फर्स्ट फंडामेंटल यूज करना होगा. देखो ये कौन सा फॉर्मूला में आएगा फर्स्ट? dx ऑफ ऐसे ddx ऑफ ऊपर ddx ऑफ नीचे नहीं लिख सकते. हाँ डिवाइड फॉर्म में है ना. हाँ सर. तो एक फॉर्मूला था देखो ddx ऑफ u by v. U by v. हाँ ddx ऑफ u by v नीचे क्या होता है देखो v स्क्वायर. Square. ये v स्क्वायर, ये है ऊपर वाला u नीचे वाला v. देखो ऐसा है ना v स्क्वायर नीचे. Yes sir. Yes, sir. देन पहले v है देखो v मतलब Yes. cos cx plus d. यहाँ पे टर्म उल्टा पल्टा होने से गलत हो जाएगा, माइनस है बीच में. तो v पहले v ddx ऑफ dx of u. बोला. X plus B. देन माइनस u. U into dx of v. गुड. ddx ऑफ v है cos cx plus d. सो अभी यहाँ पे हम लोग, ये है मेरा फर्स्ट फंडामेंटल u by v फॉर्मूला हो गया. अभी ddx देखो तो ये होल स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हो cos स्क्वायर cx plus d. ये है cos cx plus d बाहर, इसका कोई डिफरेंशिएट नहीं है. यहाँ पे डिफरेंशिएट है ddx ऑफ साइन. ये पूरा पार्ट होगा व्हाट x, X. isn't it? तो ddx ऑफ साइन x is what? cos x. Yes sir. but this part is not x, तो अगेन क्या लिखना होगा? dx of sin x. नो नो Sin नो ax plus b. Sorry sir. ax plus b. इसको मैंने x माना, साइन को तो साइन ही रखा ना. माइनस साइन ax plus b. यहाँ पे देखो ddx ऑफ cos, इसको x मानो cx plus d को. ddx ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन x ना. X. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
sin cx plus d again ddx of what? cx plus d. cx plus d, क्योंकि cx plus d को मैंने एज्यूम किया। सो अल्टीमेटली देखो ये है cos स्क्वायर cx plus d, यहाँ पे होगा फर्स्ट cos cx plus d, देन cos ax plus b। इसको डिफरेंशिएट करो तो कोई ddx of ax plus b, ddx of ax plus, हाँ क्या a, वेरी गुड। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ddx of ax plus b क्या होगा, तो तुम सही लोग है। इसको हाँ ddx of ax प्लस ddx of b लिख सकते हो। तो ax a कांस्टेंट आउट, ddx of x और ddx of कांस्टेंट 0, ddx of x 1, तो a into 1 a। सो ddx of ax a होगा, ddx of x 1 into a और वो 0 प्लस sin ax plus b sin cx plus d and ddx of cx plus d c हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ देखो इसको अगर दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, ये बाय ये बाय ये हो जाएगा ऐसे cos cx plus d, cos सामने a है, ये तो एकदम सामने लिख देना, cos ax plus b डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx plus d, देन प्लस ये बाय ये c है, c sin ax plus b and then sin cx plus d divided by cos square cx plus d। सो देखो यहाँ पे cos cx plus d cos square cx plus d, यहाँ पे दो बार है, एक बार कट जाएगा, है ना? हाँ Isn't सर। it? तो a cos, ये मत काटना क्योंकि ये एंगल डिफरेंट है, isn't it? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा cos स्क्वायर cx plus d। हाँ, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ c sin ax plus b, एक cos cx plus d यहाँ पे रखता हूँ और एक sin cx plus d इसके नीचे रखता हूँ cos cx plus d, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, एक उसके नीचे रख दिया बिकॉज साइन बाई कॉस तब 10 हो जाएगा। सो मतलब स्टैंडर्ड आंसर कैसे बनता है देखो, सो दिस इज a cos ax plus b एंड ये 1 by cos cx plus d है, that is you can write sec cx plus d, can I write? Yes, sir. Good. Plus c sin ax plus b, ये 1 by cos cx plus d, इसको sec cx plus d लिखो, into sin by cos, that angle is same, so that will be 10, है ना? Yes, sir. So this is the standard answer here. Understood? और या तो sec cx plus d तुम कॉमन भी ले सकते हो अगर कॉमन लेना चाहते हो तो, क्योंकि दोनों टर्म में है देखो sec cx plus d, isn't it? Sir, 10cx plus d कहाँ से है? sin cx plus d by cos cx plus d क्या है ये? What is sin by 10cx. cos? हाँ, sin by cos is 10. So तो ये sec कहाँ से हुआ? ये हाँ, sin ax plus b ना, हाँ सर। ये 1 by cos cx plus d, तो sec हो जाएगा ना? हाँ सर।
अभी समझ हाँ सिक्स, यहाँ पे थोड़ा त्रिगोनोमेट्री इसलिए फॉर्मूला यूज करो तो सम टू स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ये कॉमन लोगे तो a cos ax प्लस b प्लस c sin ax प्लस b एंड देन 10 cx प्लस d। आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा। देखो है ना? हाँ सर आया। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला देखो, नंबर 2 क्या था? dx ऑफ cos x क्यूब, x के ऊपर पावर है इनटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 ना? हाँ यस। सर, हाँ सर। सो देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है cos x क्यूब, एक है साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। तो पहले यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल डेरिवेटिव यूज होगा बोलो तो? कौन सा चीज पहले यूज होगा बोलो? u into v। सर ddx of u into v। यस वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल u into v, मतलब तुरंत ऐसे मत लिखना ddx of v ddx of v, नो, तब गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट रूल का फंक्शन पहले लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। ये u है और ये सपोज v है, तो u u into ddx of v v means sin square x to the power 5 plus v ddx of u, u मतलब cos x क्यूब। अंडरस्टूड? यस सर। देखो cos x क्यूब, ये साइन स्क्वायर है, हाँ साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता ddx में, तो स्क्वायर को तुम बाहर लेके जाओ, बाहर लिख सकते हो वैसे, है ना? यस सर। वेरी गुड। फिर ये कांस्टेंट हिसाब से ddx नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बोलो कौन सा x होगा? ddx ऑफ cos x क्यूब, कौन सा x होगा बोलो? X cube. x वेरी cube गुड। दैट x क्यूब इज x, तो ddx ऑफ cos x हो गया माइनस साइन x मींस x क्यूब। x क्यूब को मैंने x माना इसीलिए ddx ऑफ अगेन x क्यूब, उसके साथ तुम लोग आंसर साथ में ही लिख सकते हो 3x स्क्वायर, बट फॉर द टाइम बिंग मैं दिखा रहा हूं cos x क्यूब। यहाँ पे कौन सा सपोजिंग पार्ट है बोलो? sure x to the power 5 Sir, sin X over 5. sin power 5। साइन, हाँ पूरा, ये पूरा पूरा x है, x स्क्वायर होगा ना तब। हाँ सर। खाली x टू द पावर 5 तुम एज्यूम करने से कैसे होगा? यहाँ पे बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये पूरा होगा x, x स्क्वायर। सो ट्वाइस x, 2 sin x to the power 5। अंडरस्टूड? यस सर। बट ये x नहीं है, तो अभी क्या होगा बोलो? ddx of sin X की power x to the power 5 वेरी गुड। ddx of sin x to the power 5 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर x to the power 5 into sin x cube। What is ddx of x cube? 3x square 3x square। Very good। Means n x to the power n minus 1, 3 x to the power 3 minus 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2 cos x cube sin x to the power 5। यहाँ पे बोलो कौन सा एज्यूम पार्ट है बोलो? सर x to the power 5 x to the power 5। वेरी गुड। तब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? sin का sir. sin x, sin sin x x।
डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos x. cos x. साथ में अगेन चेन रहेगा Yes, sir. डी डी एक्स ऑफ व्हाट? डी डी एक्स ऑफ व्हाट? dx of x to the power 5. x to the power 5. वेरी गुड. सो ये हो गया माइनस, देन 3x स्क्वायर पहले लिखो, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 साइन x क्यूब. बहुत माइन्यूटली करना है ये सब सम, वन बाय वन स्टेप देखना होगा. बहुत देखने में बहुत इजी लगता है बट वेरी लेंथी सम. ओके, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. नाउ ये डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 को एक साथ यहीं पे कर देता हूँ. व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5? 5x to the power 4. 5x टू द पावर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है. सो 5 2 जा 10, 10. x to the power 4, then cos x cube sin x to the power 5, then cos x to the power 5 minus 3x square sin square x to the power 5 and then sin x cube. देखो यहाँ तक. Any doubt? No, sir. Very good. Twin? No, sir. वेरी गुड. अभी देखो यहाँ पे मैं एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करूंगा. हाँ ठीक है. देखो फर्स्ट तुम एक काम करो, यहाँ पे x टू द पावर 4 एंड x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ. x स्क्वायर हाँ सर. ले लो कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे 10x स्क्वायर cos x क्यूब sin x to the power 5 cos x to the power 5 minus 3 sin square x to the power 5 sin x cube. देखो इसमें थोड़ा मैं यहां से 2 इसके साथ लिख लेता हूं. 5x स्क्वायर cos x क्यूब, ये 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूं. 2 sin x to the power 5 cos x to the power 5 minus 3 sin square x to the power 5 sin x cube. Are you getting the point? सर 2 से क्यों? हाँ वही तो बात है. देखो मैंने 10 से 2 यहाँ पे क्यों लेके आया ना. हाँ सर. हाँ वेरी गुड. देखो वो मैंने जो तुम लोग को एक सॉफ्ट कॉपी दिया था, आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर और नॉट. साइन sir. 2x समझ में फॉर्मूला है, समझ में आया? हाँ सर. साइन 2x इज व्हाट? 2 sin x. 2 sin x cos x. Yes sir. तो आज से तुम लोग वो फॉर्मूला लर्न करना शुरू कर दो. हाँ हाँ सर. so that is sin 2x is 2 sin x cos x. am I clear? हाँ सर. इसको देखो ऐसे ही दिख रहा है. 2 sin x to the power 5 is suppose x, 2 sin x cos x, सेम एंगल सेम है ना. हाँ सर. so वहां पे मैं लिखूंगा अभी sin 2x x स्क्वायर 5x स्क्वायर cos x क्यूब इनटू ये हो जाएगा sin 2 x means x to the power 5. yes or not? Yes sir. minus 3 sin square x to the power 5, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी रहेगा. हाँ हाँ सर. मतलब तुम लोग का देखेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूलाज भी याद है कि नहीं. बहुत सारा चीज असेसमेंट होगा. सो यहां से और आगे नहीं जा पाओगे. आंसर यहीं पे खत्म. ठीक है सर यही आंसर होगा. हाँ. और कुछ कॉमन है क्या? देखो नहीं है सर. तो छोड़ दो, हो गया. अंडरस्टूड? हाँ सर. वेरी गुड. अभी मैं थोड़ा और एक लेवल ऊपर चला जाता हूँ. देखो
हो गया सबका? Yes, sir. वेरी गुड। तो डिराइवेटिव में एक बात याद रखना, जब लॉग का बेस नहीं देगा, अगर तुमको बोला है कि ddx ऑफ ये फाइंड करो लॉग ऑफ x, अगर बेस मेंशन नहीं किया so that means always e, remember, okay, when it is not mentioned. Am I clear? वैल्यू क्या होता है? हाँ, ई का वैल्यू क्या होता है? e का वैल्यू एक्चुअली 2.718. okay, this is an irrational number. okay, हाँ this is सर, an irrational number. ई को क्या बोलते हैं? e is actually exponential function. okay, exponential. हाँ सर, e to the power x का ग्राफ है ना, हाँ सर है। y इक्वल टू e to the power x, इसका ग्राफ कैसा है बोलो तो? इसका सर, ग्राफ, इसका ग्राफ है ये। मतलब देखो, अगर x तुम 0 लोगे तो y 1 होगा ना, यस सर। यहाँ पे काटता है। और अभी x का वैल्यू तुम पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे, e का वैल्यू एक्चुअली 2.7 ही ले लेता हूँ, 2.7 टू दी पावर x। अगर मैं x पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 4, तो ये बढ़ता जाएगा ना ऊपर, यस सर। इंक्रीजिंग होता जाएगा। ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये कभी भी देखो नीचे, मतलब लेफ्ट साइड से, ये सब बाद में मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। x का वैल्यू तुमको लेफ्ट से राइट तक जाते रहोगे और ग्राफ देखोगे कैसे चेंज हो रहा है। तो जब तुम लेफ्ट से राइट तक जाते रहोगे, y का वैल्यू ऊपर जाता रहेगा ना। यस सर। So it is called strictly increasing. okay, strictly increasing function in the whole domain. So अभी देखो, अगर इस पे तुम x का वैल्यू निगेटिव लोगे, निगेटिव -1 -2, so सपोज मैंने -1 लिया, तो ये 1/2.7 होगा। यस, यस सर। बट पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव। अभी देखो निगेटिव वैल्यू लोगे तो वो वैल्यू कमता जाएगा, वेरी, एक टाइम में वेरी क्लोज टू 0 होगा, बट इट विल नॉट 0, बिकॉज तुम यहाँ पे x का वैल्यू जितना भी लो -1000, so 1/2.7 to the power 1000, ये वैल्यू बहुत 0 का बहुत नजदीक होगा, isn't it? यस सर। 0.000 कुछ, बट एग्जैक्टली 0 नहीं है ना। हाँ सर। इसीलिए ये ग्राफ वेरी क्लोज टू x एक्सिस आएगा, क्योंकि y कैनॉट बी 0, बट वेरी क्लोज टू 0, सॉरी x सॉरी y कैनॉट बी व्हाट, 0, बट वेरी क्लोज टू 0। 0, इसीलिए ये बहुत क्लोज में आ जाएगा x एक्सिस का, बट टच नहीं करेगा, लगेगा कि इंफिनिटी में टच करेगा। सो इसका कार्व होता है ऐसे, अंडरस्टूड? यस सर। बोलो बोलो, यानी सर जो भी फंक्शन होगा जिसके ऊपर पावर होगा तो सर वो कभी 0 नहीं हो सकता ना y एक्सिस पे। वो अभी डिपेंड करता है तुम किसका पावर लिया है। हाँ, एक्चुअली पावर के ऊपर कभी वो 0 नहीं होता है डेफिनेटली। अगर मान लो तुमने e नहीं लेके सपोज fx इक्वल टू a टू द पावर x लिया, हाँ, a का वैल्यू अभी कांस्टेंट, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, 2 3 4 5 2 टू द पावर x, इसका भी x कुछ भी लो, y कभी भी 0 नहीं हो सकता है। Am I clear? यस सर। सो थोड़ा ग्राफ तुम लोग स्टडी करना, बहुत चीज मालूम हो जाएगा ग्राफ से। देखो, जब तुम लोग को बोलेगा ddx ऑफ log x, तो बेस अगर मेंशन नहीं किया, दैट बेस इज ऑलवेज व्हाट, e। वेरी गुड। अगर मेंशन नहीं किया, अगर मेंशन करेगा तो दूसरा बेस दे सकते हैं वो लोग, शायद यहाँ पे दे दिया 10, तब तुमको उसको बेस चेंज करना होगा। अगर नहीं दिया सो दैट इज ऑलवेज ई। जैसे मैं कुछ इसका क्वेश्चन देता हूँ, देखो चेन में, क्योंकि यही जाके फिर बिगर क्वेश्चन बनेगा जब तुम लोग सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव करोगे, तो यही से तुमको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। सर, हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पे ddx ऑफ log x में ddx नहीं रहा तो 10 बेस अज्यूम करते हैं ना? नहीं, एक्चुअली देखो, अगर कैलकुलस है
कैलकुलस में तुम्हारा हमेशा ई देता है। अभी एक बात है, देखो लॉग का दो बेस होता है, एक बेस होता है 10, केमिस्ट्री में किया है ना तुम लोग, आज तक किया है। सो दैट इज 10 बेस, अंडरस्टूड, यस सर। दैट इज बेस इज 10। बट कैलकुलस में तुमको 10 भी दिया रह सकता है, अगर नहीं दिया सो दैट इज ऑलवेज ई। हाँ ओके सर। लेकिन तुम लोग केमिस्ट्री में जो करते हो सो दैट इज 10 बेस, वो टेबल से वैल्यू फाइंड करते हो ना, एंटी लॉग, यस सर। so that is basis 10. Differentiate 10 बेस क्यों है बोलो तो उसका, बिकॉज दैट इज जो नंबर आता है दैट इज डेसिमल सिस्टम में आता है, तब में आता है। डेसिमल सिस्टम में आता है। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक दिया मैंने, सपोज log ऑफ साइन ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 3 and number 2 log of x plus root over x square plus 1. यही जाके बाद में तुम्हारा बिगर बिगर क्वेश्चन में एक एक पार्ट हिसाब से यूज होगा, अभी तुम लोग यही से सीखना होगा चेन रूल से ही। सो इसको ddx करेंगे, ddx ऑफ log साइन 2x स्क्वायर माइनस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये सामने log है, बेस नथिंग मींस e, तो तुमको फॉर्मूला मिला है ddx ऑफ log x का ना, यस सर। तो दिस होल पार्ट विल बी x, यस। यस सर। So ddx of log x is what? 1 by 1 by log 1 by log x। no no no, फॉर्मूला देखो, ddx of log x का फॉर्मूला देखो, 1 by x, 1 by x, very good, 1 by x, this is x sin 2x square minus 3, इसको x माना 1 by x, but it is not x, तो इसलिए ddx of कौन सा पार्ट बोलो, ddx of what? sin की पावर 2x square minus 3. Very good. So 1 by ये sin as it is, इसमें कौन सा सपोजिंग पार्ट है बोलो, 2x square minus 3. यस, तब यस ddx ऑफ sin x बन जाएगा। सो cos x हो गया ये, अगेन Yes, sir. ddx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3। आई थिंक यू अंडरस्टूड। Yes sir। cos 2x स्क्वायर माइनस 3 बाई sin 2x स्क्वायर माइनस 3, ये बोलो तो ddx ऑफ 2x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट ना, 4x. 4x, yes, ddx of 2 बाहर, ddx of x square is twice x, 2 to the 4x and ddx of 3 is 0, नहीं लिखने से भी होगा, अंडरस्टूड। Yes sir। नाउ ये देखो बोथ एंगल सेम, cos बाय sin क्या होता है, Cot. cot, वेरी गुड, तो 4x cot 2x स्क्वायर माइनस 3, ये पहला वाला का आंसर। Am I clear? Yes sir। Yes sir. सेकंड वाला देखो, dx ऑफ कौन सा सपोजिंग पार्ट है बोलो, So x plus Plus 1. yes, x plus under square root x square, this whole part is x, so ddx of log x क्या होता है, 1 by x. by x। 1 by x means ये है, but this is not x, again ddx of x plus, understood, Yes sir। very good,
नाउ देखो 1 by x plus root x square plus 1, so ddx of x 1, ठीक है, yes sir, प्लस ddx of root, इसको x मानो, ddx of root x 1 by root x, that's it. ये पार्ट x नहीं है, अगेन ddx of what, Root x square रूट plus नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा, रूट इसको x माना अंदर वाला, so x square plus 1. हाँ हाँ, क्योंकि ddx of देखो फॉर्मूला में रूट ऑलरेडी है, तो रूट तो ऑलरेडी है ही, सिर्फ इसको मैंने x माना, अंडरस्टूड। Yes sir, देखो 1 plus 2, व्हाट इज ddx of x square, 2x 2x एंड वो 0 हो जाएगा, नहीं तो लिखने से होगा, 2 कैंसिल, थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, देखो सो 1 by x plus root over x square plus 1, यहाँ पे ये एलसीएम ले लो, रूट ओवर x square plus 1, x square plus into 1, x square plus 1 root plus x, तो ये और ये सेम है, देखो है ना, yes sir, so that is आंसर हो गया व्हाट 1 by अंडरस्टूड। yes sir, मैं 2 शाम दे देता हूँ, तुम लोग घर में करना, हाँ? ठीक है, okay sir, हाँ sir, differentiate with respect to x, number 1 log of x plus root over x square plus 1 divided by x minus root over x square minus 1, तो इसमें पहले तुम लोग पोपार्ट यूज कर लोगे, log a by b, ठीक है, हाँ sir, नंबर 2 लिखो log 7 base x, अंडरस्टूड। ये दोनों साम तुम लोग ट्राई करके रखोगे, हाँ, हाँ sir, नेक्स्ट क्लास में मैं पहले ये देखूंगा तुम लोगों का, ठीक है, okay sir, चलो बाय, गुड नाइट, thank you sir, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम।